Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the fourth chapter of Enriching English Reader book of Standard 2. The name of the chapter is Vikas Loses a Teeth. Vikas loses a teeth. We will start reading the chapter. Have you ever lost a baby tooth? What did you do with it? Let us read the story and say what Vikas decides to do with his lost tooth. Let us read the story and find out what Vikas decides to do with his lost tooth. Vikas put up his hand in the class. He studied in Hyderabad International School. Mrs. Sharma, his teacher, asked, "Do you have a question, Vikas?" "It's more like a problem," Vikas said. "I lost my tooth." Vikas stood up and showed the class his baby tooth. "Congratulations," Mrs. Sharma said. "Does anyone have any advice for Vikas?" she asked the class. Keiko put up her hand. Keiko was from Japan. "It is an upper or a lower tooth?" Keiko asked. "A lower tooth," Vikas said. He showed the class the empty spot in the bottom of his mouth. "You should throw your baby tooth over the roof of your house," Keiko said. Why would I do that?" Vikas said. "So that your new tooth grows properly. When you lose an upper tooth, you should put it under the floor." Frida disagreed. Frida was from Austria. "You should not throw your baby tooth away, Vikas. You should give it to your mother," she said. "Why would I do that?" asked Vikas. "She will make it into a necklace for you to wear," said Frida. George put up his hand. He had some different advice for Vikas. George was from Mexico. "You should put your broken tooth under your pillow when you go to sleep," George said. "Why would I do that?" Vikas said. "Then the tooth mouse will come in the night. He will take your tooth and repay you with good luck. He even brings a small toy with himself." Vikas liked George's advice the best. Mrs. Sharma gave him a box to keep his tooth in and said, whatever you decide, you should show your mother your tooth when you get home." When Vikas got home, he showed his mother the empty spot in his mouth. He also showed her his tooth in the box. "Congratulations. What will you do with your tooth, Vikas?" his mother asked. "I will put it under my pillow," he said. The next morning when Vikas woke up, he looked under his pillow. In the place of the tooth, he found a 50-rupee note and a letter. The letter said, "Dear Vikas, congratulations. You lost your first tooth. I will keep it forever. Buy something nice for yourself with this money. Love, the Tooth Fairy. I should tell my class about the Tooth Fairy." Vikas thought, everyone should lose a tooth. ठीक है ना? आपने कभी आपके बेबी टूथ गिरे हैं? बेबी टूथ मतलब आपके दूध के दांत जो होते हैं, जो जन्म के कुछ मंथ्स के बाद आपके माउथ में आ जाते हैं, और फिर जब आप 1-2 क्लास के आसपास पहुंचते हैं, 6-7 इयर्स के होते हैं, तो धीरे धीरे वो सारे गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह नया परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाता है, आता है ना? तो आप लोग के भी बेबी टूथ गिर रहे होंगे, तो अभी तक नहीं गिरे हैं तो आप गिरना शुरू होंगे। 3 क्लास 4 क्लास तक आते आते आपके बेबी टूथ गिरने लगेंगे। जब आपके बेबी टूथ गिरते हैं दांत से, तो उनको आप कहाँ टूट जाते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं? इस स्टोरी में हम लोग ये जानेंगे कि विकास ने क्या डिसाइड किया कि उसका जो टूथ उसने लूज कर दिया, अपना टूथ जो उसने खो दिया अपने मुंह से जो गिर चुका है उसके माउथ से, उसको उसने क्या किया। वह क्लास में है। विकास किस स्कूल में पढ़ता था? हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। तो जब हम लोग को टीचर को कुछ कहना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं? अपना हैंड रेस करते हैं ना। तो उसने भी अपना हैंड रेस किया। तो मिसेस शर्मा जो उसकी टीचर थी, उसने पूछा, "विकास, क्या तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है?" तो विकास ने कहा, "क्या कहा? क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये इट्स मोर लाइक अ प्रॉब्लम। मुझे एक प्रॉब्लम है।" विकास ने कहा, "मैंने अपना टूथ लूज किया है। मेरा एक दांत गिर चुका है।" विकास खड़ा हो गया और अपना वो जो बेबी टूथ है, वो जो दूध का दांत है बचपन में जो आया था, वह अपने क्लास को दिखाया। मिस्टर शर्मा ने क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको बधाई दी, है ना? चूंकि प्रॉब्लम में था। प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि उसको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसको आपको सॉल्व करना है, कुछ मुश्किल आ जाती है, उसको आपको ठीक करना है। तो मिस्टर शर्मा ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या किसी के पास कोई एडवाइस है विकास के लिए? वह अपने क्लास से पूछी। क्या कोई विकास को कोई सलाह देना चाहता है किसी बारे में, इस टूथ के बारे में?
उसी समय केइको नाम की एक लड़की जो कि जापान से थी, उसने अपना हैंड्स रेस कर दिया, अपना हाथ ऊपर उठाया, और जापान से थी। उसने पूछा ये तुम्हारा अपर टीथ है या लोअर टूथ है? अपर टूथ या लोअर टूथ? अपर टूथ मतलब ऊपर के जॉ से गिरा है कि नीचे के जॉ से गिरा हुआ है, उसने पूछा। तो विकास ने कहा लोअर टूथ मतलब नीचे के जॉ से निकला है। और उसने अपने क्लास को अपना एम्प्टी स्पॉट इन द बॉटम ऑफ हिज माउथ दिखाया। जहां से टूथ गिर जाता है वो जगह खाली हो जाता है ना, तो वो एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया था। एम्प्टी स्पॉट, स्पॉट माने वो प्लेस जहां पे वहां खाली हो गया था, खोखला हो गया था, वह इन द बॉटम ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह के नीचे साइड में, मुंह के नीचे साइड में जहां पे था वहां पे उसने दिखाया। ठीक है, कि मेरे जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ में देखो ये खाली स्पॉट है, ये खाली जगह है जहां से मेरा टूथ गिरा है। स्पॉट मतलब वह जगह, वह पोजीशन, एग्जैक्ट वह प्लेस जहां से गिरा है। बॉटम मतलब नीचे का पार्ट। तो केइको ने कहा कि चूंकि ये तुम्हारा लोअर टूथ है, नीचे के जॉ से, इस जॉ से निकला है, तो तुमको उसको अपने घर के छत के ऊपर उसे फेंक देना चाहिए। तो विकास ने पूछा ऐसा मैं क्यों करूं? तो वो बोलती है ऐसा करने से क्या होता है कि तुम्हारे जो नए दांत आएंगे, उस जगह पे जो नया दांत आएगा तुम्हारे माउथ में, वह अच्छे से ग्रो करेगा, वह अच्छे से आगे ठीक तरीके से निकलेगा। और जब तुम ऊपर जॉ, ऊपर के मुंह से, अपर जॉ से, हाँ अपर टूथ मतलब ऊपर वाले जॉ से कोई दांत लूज करोगे तो उसको तुमको जमीन के नीचे रखना चाहिए, मिट्टी के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो एक और लड़की थी फ्रीडा। फ्रीडा कहाँ से थी? ऑस्ट्रिया से। फ्रीडा डिसएग्रीड, फ्रीडा सहमत नहीं हुई केइको की बात से। केइको की बात को वो एग्री नहीं की, बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसका बात को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ठीक नहीं लगा उसका बात। उसने बोला कि तुमको अपना बेबी टूथ तुरंत फेंक देना चाहिए। हाँ, उसने कहा, फ्रीडा ने क्या कहा, तुमको अपना बेबी टूथ फेंकना नहीं चाहिए, उसको किसको करना चाहिए? अपनी मम्मी को दिखाना चाहिए, तुमको उसको अपनी मम्मी को दिखा देना चाहिए। तो विकास बोला क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो उसने कहा, फ्रीडा ने, तुम्हारी मम्मी उससे एक नेकलेस बना देगी जिसको तुम पहन सकोगे। नेकलेस क्या होता है? हार होता है। हाँ, हम लोग मोतियों में क्या करते हैं, उसके भीतर रस्सी डाल के, धागा डाल के एक हार बनाते हैं ना गले में पहनने के लिए। उसी तरह वो जो टूथ तुम्हारे दांत से गिरते जाएगा, उसको मम्मी एक जगह जमा कर लेंगी, बहुत सारा टूथ, और सबके बीच में एक होल कर देंगी और उसमें एक धागा डाल देंगी, जिसको तुम गले में नेकलेस के जैसा, हार के जैसा पहन पाओगे। नेकलेस क्या होता है? जो ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, जो गहने हम लोग पहनते हैं, उसी एक तरह का वह गहना है, तो वो नेक में, गर्दन में पहना जाता है। उसी समय जॉर्ज नाम का एक लड़का था, वह मेक्सिको से आया था, दूसरे कंट्री मेक्सिको से था। उसने अपना हैंड्स रेस किया और उसके पास कोई दूसरी सलाह थी विकास को देने के लिए। उसने कहा कि ये जो तुम्हारा टूटा हुआ टूथ है, ये टूटा हुआ दांत है, इसको तुमको अपने पिलो के नीचे रख देना चाहिए जब तुम सोने जाओगे। पिलो मतलब क्या होता है? तकिया होता है। जब तुम सोने जाओगे अपने तकिया के नीचे रख देना। तो विकास ने बोला क्यों मैं ऐसा करूं? तो उसने कहा रात में टूथ माउस आएगा, दांत वाला लेने वाला चूहा आएगा। ठीक है, वो दांत लेने वाला चूहा आएगा और वह तुम्हारे इस दांत को ले जाएगा और उसके बदले में वह तुमको रिपे करेगा, गुड लक मतलब। और तुम्हारा वो दांत वाला चूहा आएगा, वह तुम्हारा दांत ले जाएगा और रिपे करेगा, मतलब उसके बदले में वह तुम्हें क्या देगा? गुड लक देगा, अच्छी किस्मत देगा, अच्छा भाग्य देगा। और वो जो टूथ माउस है वो अपने साथ एक छोटा सा खिलौना भी लाएगा, छोटा खिलौना भी लाएगा। He even brings a small toy with himself। वो जो टूथ माउस होगा वो तुम्हारे लिए खिलौना भी लाएगा। विकास को तो ये नई बात लगी, अच्छी लगी। उसको जॉर्ज की सलाह, एडवाइस मतलब सलाह होता है, उसको जॉर्ज की सलाह सबसे अच्छी लगी। मिसेस शर्मा ने एक छोटा सा उसे बॉक्स दिया और बोला कि इसमें अपने इस टूथ को रख दो, और जब तुम घर डिसाइड कर लोगे, तब जब तुम फैसला कर लोगे कि तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम फैसला करोगे, उसके पहले तुम अपनी मम्मी को यह टूथ दिखा देना। जब तुम घर जाओगे मम्मी को यह टूथ दिखा देना और तुमने क्या फैसला किया है, तुमने क्या डिसाइड किया है कि क्या करना है, वो भी अपनी मम्मी को बताना। विकास जब घर गया उसने अपनी मम्मी को दिखाया। When Vikas got home, he showed his mother the empty spot in his mouth, and he also showed the tooth। जब विकास घर लौटा तो उसने क्या किया, अपनी मदर को दिखाया कि उसके मुंह में वो खाली जगह दिखाया जहाँ पे उसका दांत टूट गया था,
और वह बॉक्स भी उसने दिखाया कि उस बॉक्स में उसकी मिस ने उसे वह दांत रखने के लिए एक बॉक्स दिया था, जिसमें उसने वह अपना दांत को रख दिया था। ठीक है, तब फिर क्या हुआ? उसके बाद उसकी मदर ने उससे क्या पूछा? Congratulations, what will you do with your tooth? Vikas's mother asked. I will put it under my pillow, he said. हाँ, फिर क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम क्या करोगे अपने इस टूथ के साथ? तो विकास ने अपने मदर को कहा कि मैं इसे अपने पिलो के नीचे रख लूंगा। हाँ, और उसने अपने पिलो के नीचे रख के उसको वो सो गया। दूसरी सुबह जब वो उठा तो उसने क्या देखा? उसके पिलो को उठा के उसने उसके नीचे देखा तो उसके टूथ की जगह उसने क्या पाया? एक 50 रुपीज का नोट था। ठीक है, 50 रुपीज का नोट था और एक लेटर था। उस लेटर में क्या लिखा था? डियर विकास, प्यारे विकास, कांग्रेचुलेशन है, तुमने अपना पहला टूथ, उसका पहला वह दूध का दांत गिर गया था, पहला टूथ उसका बेबी टूथ गिरा था, कि तुमने अपना पहला टूथ खोया है, तुम्हारा पहला टूथ गिरा है, मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगा, तुमको अपने लिए कुछ अच्छा चीज इस पैसे से खरीद लो, और प्यार से। कौन ये नीचे किसका नाम लिखा था? द टूथ फेरी, दांत वाली परी, दांतों की परी। हाँ, दांतों की परी ने उसे वह गिफ्ट दिया था। और फिर विकास ने क्या सोचा कि मैं मेरे क्लास में ये दांतों की परी के बारे में सबको बताऊंगा, और हर किसी को अपना दांत टूटना चाहिए, हर किसी का दांत टूटना चाहिए। In Argentina, when children lose their baby tooth, the tooth is left in a glass of water. It is believed that a mouse named Perez arrives, drinks the water, takes the tooth and leaves a gift in the glass for the child. अर्जेंटीना एक कंट्री है, वहाँ पे ये माना जाता है कि जब बच्चों के बेबी टूथ गिरते हैं, पहला दांत, जब बेबी टूथ गिरते हैं तो टूथ को एक पानी के ग्लास में रख देना चाहिए, पानी के साथ, और एक माउस आएगा, एक चूहा आएगा जिसका नाम पेरेस है, वो आके वह पानी पिएगा और वह टूथ ले जाएगा, और बदले में उस ग्लास में क्या होगा? एक गिफ्ट बच्चे के लिए रखा रहेगा। इस तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें, बातें मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, सच में एक टूथ फेयरी आई होगी जिसने वो 50 रुपीज का नोट रखा? नहीं, ये उसकी मम्मी ने ही, विकास की मम्मी ने ही रखा होगा, क्योंकि विकास को यह भरोसा था कि उसको एक गिफ्ट मिलेगा पिलो के नीचे, इसलिए उसकी मम्मी ने ही रखा होगा। अच्छी स्टोरी थी ना? आप लोग के दांत टूटने पे, बेबी टूथ टूटने पे आप लोग क्या करते हैं? आपकी मम्मी से पूछिएगा तो क्या किया जाता है, अगर हमारा बेबी टूथ गिरे तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? ये आपकी मम्मी से पूछिएगा। ज्यादातर इंडिया में क्या करते हैं? जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं ना बेबी टूथ गिरने से। शायद आपकी मम्मी भी यही बोलेगी आपको। अच्छा स्टोरी था, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर बेल बटन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जल्दी ही प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।